Fine. So let's start. Acha, how was your KVP by test? Did you give? Yes, ma'am, I had a doubt in one Only or two of if it. that question is regarding that Rutherford wala question, uska answer galat diya hua tha, we will get it cross checked. Ma'am, there Anything was else? this question, the charge on 1 gram ions of Al3 plus. Beta, please, if you can forward us, that will be better because like Yes, this, ma'am. even I can't understand what are you Yes, asking. ma'am. Ma'am, I also have a doubt, but it is not from KVPY. So send it now, Vayar. What are you waiting for? Why do you wait for the doubts? Okay, so let's begin by the time they send their doubts. But fine. So this is what a component of 2 containing n1 moles of first component, and then the molecular weights of this and this, if density is this, molarity is this, then C2 can be expressed. Okay, fine. See, this is a good question. Actually, वैसा तो बहुत ज़्यादा वो difficult सा नहीं है. Simple सा ही logic है. There is a solution of 2 components containing n1 moles of first component and n2 moles of second component. ठीक है, m1 and m2 are molecular weights of these components. Fine. If D is the density of the solution in grams per liter and C2 is the molarity, C2 is the molarity, and X2 is the mole fraction of second component, then C2 can be expressed, and you have to express in terms of D, X2, M2, M1. ठीक है. So C2 की value अपने को express करनी है. So C2 stands for what? Concentration stands for what? Concentration stands for what, beta? Come on, jaldi jaldi bolo. Concentration. So that means it will be standing for moles of solute. Yes, ma'am. Okay, upon what? Volume of solution In liters. in liters. ठीक है. अब इनमें से एक कंपोनेंट सॉल्यूट होगा. कुछ इंफॉर्मेशन तो नहीं दी है कि कौन सा सॉल्यूट होगा. तो लेट अस टेक एनी वन ऑफ द कंपोनेंट एज सॉल्यूट. तो सपोजिंग इफ आई टेक, अब देखो जो उसमें ऑप्शंस दिए ना, उसमें n नहीं दिया हुआ है. प्रॉब्लम ये है, देखो मैं तुम्हें ऑप्शंस भी लिख के देती हूँ ताकि तुम इसको रिलेट कर पाओ. सो जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं वो ये है, C2 इज इक्वल टू 1000 x2 upon m1 plus x2 m2 minus m1. ऑप्शन बी जो दिया हुआ है that is d x2 m2 plus x2 m2 minus m1. So C2 is what? 1000 d x2 upon m1 plus x2 m2 minus m1, and D option is C2 is equal to D x1 and then m2 plus x2 m2 minus m1. तो ये है हमारे ऑप्शंस. ठीक है. सो अब इसको करते हैं. तो देखो हमें क्या चाहिए? we need molarity. Molarity means what? Moles of solute. Solute upon volume of solute. Yes, moles of solute upon volume of solution in liter. Volume of solution
and that should be in liters. ठीक है, in liters. अब देखो हमें नहीं पता कि x2 को सॉल्यूट लेना है x1 को, बट मेजॉरिटी ऑप्शंस में x2 ऊपर आ रहा है, तो कैन आई टेक x2 as solute? I can assume as like this because there is no information given that who is in the lesser composition and who is in the higher composition. तो solute solvent को identify करना अभी थोड़ा difficult हो रहा है, but seeing the options, क्योंकि हमें option को ही match करना है, can I say x2 can be the solute? Yes. Let x2 is the solute. Can I do like this? Are you fine? Yes, ma'am. ठीक है, तो सेकंड कंपोनेंट को हम लोग सॉल्यूट ले लेते हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो सेकंड कंपोनेंट के मोल्स लिखे हुए हैं N2, बट क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी N2 नहीं आ रहा है तो मैं N2 नहीं डायरेक्टली यूज करना चाह रही हूँ, मुझे बाकी चीजों से निकालना पड़ेगा। तो बाकी चीजों में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मोल मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है और मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। सो इफ सपोजिंग आई एम अज्यूमिंग द सेकंड कंपोनेंट इज द सॉल्यूट, सो हाउ विल आई राइट द मोल फ्रैक्शन फॉर द सॉल्यूट? How will you write the mole fraction of solute? कैसे लिखोगे बेटा, जल्दी बोलो। How will हम you write? N2 upon N1 plus N2. So क्या लिखोगे, वैसे तो होना चाहिए N2 upon N1 plus N2, बट हमें वो यूज ही नहीं करने हैं, N1 और N2 यूज नहीं करने हैं क्योंकि वो किसी भी ऑप्शंस में नहीं आ रहे हैं। अगर हम उनको लेंगे तो वो टर्म चलते चले जाएंगे और दे आर नॉट इंक्लूडेड इन दी ऑप्शन, तो वो हमें यूज ही नहीं करने हैं। सो अब यहाँ पर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ, okay, moles of the first component, that is this one. So moles of second component divided by total number of moles, total number of moles, ठीक है। या फिर अगर हम लिखना भी चाहें तो it will be N2 upon N1 plus N2, ऐसे लिखोगे या नहीं? Can you get it? Can you get Yes, it? ma'am. अब इसमें से अपने को N2 और N1 और ये सब हटा देना है क्योंकि हमारे कहीं पर भी, यहाँ पर देखो कहीं पर भी वो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, मोल्स, यहाँ से मतलब यहाँ पे अपने को मोल्स चाहिए, दैट इज N2 चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब N2 चाहिए, वो तो यहाँ से मिल जाएगा, ओके। बट अभी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या चाहिए, मास upon density, mass of Yes, the ma'am. solution divided by density of the solution. Now density they have given, I think D, check it out. हाँ, D दिया हुआ in grams per ml। तो वॉल्यूम जो है इन ml में कैसे आएगी, मास ऑफ द सॉल्यूशन कैसे निकालें, मोल्स पता हो, मॉलिक्यूलर वेट पता हो, तो मास कैसे निकलेगा, प्लस N2 M2 upon D। Can I write like this? Yes, ma'am. मोल्स पता थे, ये पता था, अब ये हो गया, ठीक है। तो इफ आई पुट इट लाइक दिस, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अगर मैं यहाँ पे पुट करूं, मोलारिटी जो उन्होंने दी हुई है, कितनी दी थी मोलारिटी अपने को, C2। अच्छा अच्छा, सॉरी देखो वो 2 सेकंड, C2 का मतलब ये हो गया कि सॉल्यूट जो है, मोलारिटी इज रिटन इन टर्म्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट, सी मोलारिटी इज रिटन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट, C2 का मतलब है उन्होंने सेकंड कंपोनेंट को ही सॉल्यूट लिया है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो अगर हम लिखेंगे तो इट विल बी व्हाट, C2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएंगे, N2, एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आई हैव जस्ट कैलकुलेटेड, इट इज हाउ मच, N1 M1 plus N2 M2, but because this solution is this density, this sorry volume is in ml, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ml से किसमें कन्वर्ट कर देंगे, into 1000। Can you follow till here? Can you Yes. follow till here? अब इसके बाद में सिर्फ मैथ का काम रह गया, मेरा काम खत्म हो गया। अब जो भी मेरे ऑप्शन है इनमें N1 N2 कहीं आ रहा है, चेक इट आउट, N1 N2 कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, अरे बोलो ma'am. भी। तो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो अब बस मैथ्स लगानी रह गई। तो एलिमिनेट कैसे कर दें, अगर हम इसको डिवाइड कर दें बाय N2, ओके, अब ऊपर भी डिवाइड कर दें, नीचे भी डिवाइड कर दें, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, ऊपर नीचे No, एक ma'am. ही, कैन आई राइट लाइक दिस, Yes. plus N2, can I Yeah. write like this? Now I want to replace this term with x1 and x2 क्योंकि वो
x2, क्योंकि वो मतलब जो हमारा ये जो यहाँ लिखा हुआ है वहां पे कहीं पर नहीं आ रहा है। तो देखो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन ना रह करके अब मैथ्स का क्वेश्चन हो गया है। सो सी यू हैव ऑलरेडी डन मोल फ्रैक्शन मींस n1 अपॉन n1 प्लस n2। अब इस पूरे टर्म को फिर से मैं n1 n2 से डिवाइड कर दूं। इफ आई डिवाइडेड बाय n2 तो सी आई विल गेट n2 बाय n1, या फिर n1 से डिवाइड कर दो तो सी आई विल गेट लाइक दिस। चेक इट आउट, विल आई गेट लाइक दिस? ऊपर नीचे n2 से n1 से डिवाइड करें तो कोई फर्क पड़ेगा? No, ma'am. ठीक है, नाउ सी थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, बस मैथ्स वाली चीजें रह गई। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 upon x2 and n2 upon n1 can be written as what? 1 upon x2 minus 1। एंड अगर इसको मैं लिखूं n1 upon n2 can be written as what? x2 upon 1 minus x2। देखो ऐसे लिख सकते हैं? जल्दी जल्दी बोलो ताकि मैं आगे जल्दी फॉरवर्ड उसका, है ना? अच्छा कि बस मैथ्स रह गया, तुम बस गिव अप कर गए मैथ्स को देख करके। तो सी दिस विल बिकम d into 1000 और अपॉन n1 upon n2 की जगह I can replace by 1 upon x2 minus this and then m1 plus m2। अब इसको सॉल्व करना ही रह गया हमारे लिए, isn't it? Yes, ma'am. अब इसको सॉल्व करना ही रह गया है, तो इसको फर्दर रीअरेंज करके सॉल्व कर पाओगे? Yes, ma'am. अभी हो जाएगा? Yes, ma'am. ठीक है, जस्ट ट्राई इट आउट एंड देखना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके Okay, ma'am. क्या कौन सा क्वेश्चन है? व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? कम ऑन, ये सब तो इतना इजीली आ रखा है। अगर क्वांटम नंबर प्लस हाफ है या माइनस हाफ है, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? टेल मी एवरीवन, ये तो बहुत बारी डिस्कस किया हुआ On the क्वेश्चन है। electron spin. Yes, this represents what? Rotation of the electron in clockwise and anti-clockwise direction respectively. No, it does not represent कि ये clockwise है और ये anti-clockwise है, क्योंकि plus clockwise को देना है या minus anti-clockwise को देना है, ऐसा कोई convention नहीं fixed है। राइट हैंड, ये जो लाइन है राइट हैंड जाएगी तो ये पॉजिटिव होगा, ऐसा कोई फिक्स चीज नहीं है, बस हमारे कन्वेंशन के हिसाब से, क्योंकि हम जब भी बुक्स पढ़ते हैं तो उनमें ऐसे ही बना होता है क्वाड्रेंट, उसकी वजह से हम बोल देते हैं कि ऊपर जा रहे तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, नीचे जा रहे तो नेगेटिव डायरेक्शन। बट ऐसा हमेशा हो, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, rotation of the electron in anti-clockwise and clockwise, no, it is also not fixed. Magnetic moment of electron, नहीं, ये भी गलत है। Two quantum mechanical spin with no classical, which have no classical analog। ठीक है, so last option is the most best one। It is representing कि दो different spins होंगी, लेकिन कौन सी clockwise है कौन सी anti-clockwise है इसका कोई logic नहीं है। ठीक है, अथर्व, is it fine now? फिर ये रदरफोर्ड वाला तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि इसका आंसर वहां पे गलत है, ये मैं करेक्ट करा दूंगी। मैम इसका आंसर होगा क्या? क्या तुम बताओ क्या होगा रदरफोर्ड वाले क्वेश्चन का? Which of the following could not be लास्ट derived? वाला हाँ, डी ऑप्शन, which one? डी। Radius of the nucleus is directly proportional to the cubic root of mass number। नहीं, ये इसने बताया था। फिक्स्ड एनर्जी वाली नहीं बताई थी ना, फिक्स्ड एनर्जी किसने बताई थी? शंबूर ने। बहुत सी ऑप्शन होगा। मैम डी ऑप्शन कब उसने बताया था? हाँ, मैम डी वाला ऑप्शन, मैम ऐसा कुछ हम लोगों ने किया तो नहीं था। किया नहीं था तो बेटा पढ़ने की जरूरत है ना, आप अपना बुक्स रीड करते रहो। ठीक है, यस मैम। मैम उसका आंसर यही दिया था, सी ही दिया था। क्या दिया था? मैम सी वाला ऑप्शन ही दिया था। सी दिया था? आई डोंट Yes, ma'am. रिमेम्बर, बट मतलब मुझे किसी ने बोला था गलत है तो आई थॉट कि आई विल जस्ट चेक इट आउट। ठीक है, तो सी होगा, क्योंकि एनर्जी रिलेटेड फैक्टर्स किसने दिए थे? रदरफोर्ड ने तो बोला था ऑर्बिट में मूव करता है, लेकिन कौन से में मूव करता है वो तो अपने को भी नहीं पता था ना। फाइन नाउ, यस मैम। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके, एनीथिंग एल्स? मैम द लास्ट क्वेश्चन, उसके नीचे भी एक है। Last question, what is it? All electromagnetic radiations travel with the speed of light. Is it correct or false? Incorrect? It's correct. मैम करेक्ट। Correct. Energy of photon of UV is lower than that of yellow light. तो UV कहाँ लाई करता है? तुम्हें वहां पे देखो ना, तुम्हारे बुक में बनाया हुआ है माइक्रोवेव्स,
ऐसे कर करके बने हुए हैं, देन रेडियो वेव्स ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है। तो वहां पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और ये है, तो ये देखना है तुम्हें विजिबल रीजन की फ्रीक्वेंसी क्या है और यूवी की फ्रीक्वेंसी क्या है। फाइन फॉर नाउ। अच्छा चलो, इसको भी ऐसे भी नहीं ध्यान रखो, बार्मर रीजन, बार्मर की सीरीज किस रीजन में लाई करती है? मैम विजिबल। Visible. विजिबल में, मतलब येलो लाइट यहाँ लाई करेगी, Yes. ऐसे रिलेट कर लो। और यूवी रीजन में कौन सी वो लाइट लाई करती है? कौन सी सीरीज यूवी रीजन में लाई करती है? लायमन। लाइमन, ठीक है। लाइमन लाइज इन यूवी रीजन, यूवी में लाई करती है, बाकी सब आईआर में लाई करती हैं। फाइन। तो अब हमें एनर्जी का रिलेशनशिप निकालना है। तो लाइमन स्टैंड्स फॉर व्हाट? 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1/1 का स्क्वायर, ऐसे लिखोगे। सपोजिंग मेरे को लास्ट लाइन का वो निकालना है, ठीक है। Yes, नाउ यू ma'am. रिमेंबर E is inversely proportional to lambda, which will be proportional to what? 1. Can I write like this? Yes, ma'am. ठीक है। This is for UV region, okay. And then if we do for Balmer region या फिर येलो लाइट के लिए अगर अपन करते हैं, तो अगेन इट विल बी व्हाट? 1/λ। फिर से लास्ट लाइन निकालो, तो इट विल बी व्हाट? आर जेड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से देख के बता दो किसकी एनर्जी ज्यादा है। देखो सामने रिलेशनशिप है, सामने रिलेशनशिप है। टेल मी किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, यूवी की या फिर विजिबल की? मैम यूवी। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा? एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ यूवी लाइट इज लोअर देन दैट ऑफ येलो लाइट। यू थिंक इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट? मैम False. इनकर। Helium, this and hydrogen will have similar spectrum. No, it is wrong. It will have similar spectrum. Yes, it will spectrum similar होगा। स्पेक्ट्रम नहीं, क्योंकि लैम्डा वैरी कर जाएगा ना जेड स्क्वायर आने से। जेड स्क्वायर आने से देखो लैम्डा की वैल्यू वैरी करेगी। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। से इस हाइड्रोजन जो वेवलेंथ देगा और हीलियम जो वेवलेंथ देगा, क्या वो सेम आएंगी? No, ma'am. नो मैम। तो फिर विल इट बी सेम और डिफरेंट? Ma'am, it will be different. डिफरेंट। And what about this? The total energy of an electron in the in uni-electron species, in uni-electrons, is greater than 0. Total energy, is it greater than 0? No, ma'am. No, ma'am. It's ठीक है। negative. हाँ, so कौन कौन से सही हुए? First one is correct, and First one, second one, and the last one. the energy तो बेटा कम आ रही है। 1 and 3 होगा। करेक्ट स्टेटमेंट्स बोला गया ना, तो 1 and 3। मैम He plus and H में सिमिलर स्पेक्ट्रम होगा क्या? यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वो बोलते हैं सिमिलर ही रहता है, तभी तो हम मैम उसको लेकिन अगर लैम्डा वेरी करेगा तो वेवलेंथ डिफरेंट हो जाएंगे ना। हाँ, बट स्पेक्ट्रम का मतलब होता है पूरी रेंज में आना ना। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है पूरा रेंज में आना। मतलब वेबग्योर में वेवलेंथ तो वैरी करेगी, लेकिन उसके अंदर तो आ रहा है ना, इस रीजन के अंदर तो आ रहा है ना। मैम तो हाइड्रोजन He plus और लिथियम 2 plus सबका सेम स्पेक्ट्रम होगा। तभी तो हम उसका फॉर्मूला यूज कर पा रहे हैं, सेम इलेक्ट्रॉनिक उसमें। मैम सारी यूनिलेक्ट्रॉन स्पीशीज का फार्मूला सेम यस, होगा। Ma'am, मतलब so सेम ही, तभी तो हम। हाँ, so it's like, ma'am, the same spectrum will be observed in hydrogen and hydrogen-like species. यस। स्पेक्ट्रम इज अ ब्रॉड थिंग ना, विबग्योर मतलब वो पूरा ब्रॉड कैटेगरी होता है ना। Yes, ma'am. ठीक है, इट इज अ ब्रॉडर कैटेगरी। Okay, ma'am. फाइन, दैट्स इट। चलो डाउट्स तो हो गए, आगे करें फिर। Yes, ma'am. चलो फिर नेक्स्ट क्या आता है अपने पास में? अच्छा, हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर दिया था आई थिंक, और आई हैव स्टार्टेड विद एटॉमिक रेडियस आल्सो ना। यस मैम।
ठीक है, तो यू नो मैं ब्रीफली अगर जल्दी से रिवाइज करूं तो व्हाट इज एन एटॉमिक रेडियस, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू दिस, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, एटॉमिक रेडियस हम लोग निकाल नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं, उतने स्पेसिफिक माइक्रोस्कोपिक अपरेटस वगैरह नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों ने टेक्निक यूज करी है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो सब्सटेंस है जिसका एटॉमिक रेडियस निकालना है वो कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, हम 3 तरीके से एटॉमिक रेडियस यूज करते हैं। Did I tell you about this? Did I Yes, tell you? ma'am. Yes, ma'am. तो कोवेलेंट रेडियस किसके लिए यूज करते हैं, जो पॉली एटॉमिक वे में एग्जिस्ट करते हैं, वो जो एटम्स होते हैं दे आर जॉइंड टुगेदर बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड। सो जैसे ये हो गया O2 हो गया, Cl2 हो गया, मतलब पॉली एटॉमिक हो एंड दे आर जॉइंड बाय अ covalent bond. So when a subspecies forms a covalent bond, so what happens, there is overlapping of orbits. कोवेलेंट बॉन्ड्स कब बनते हैं, जब हमारे ऑर्बिट्स क्या कर जाते हैं, ओवरलैप। डू यू फॉलो दिस? Yes, ma'am. दिस इज द डिस्टेंस r, तो यहाँ पर कोवेलेंट रेडियस क्या हो जाता है, इट बिकम्स r/2, isn't it? And because there is overlapping, जो ये कोवेलेंट रेडियस आएगा, this will be lesser than that of the actual radius. Isn't it fine? Yes, ma'am. ठीक है, then comes the next one. दूसरा वाला क्या हो जाएगा, अब बहुत सारे जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, पॉलीएटॉमिक या मोनोएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक या मोनोएटॉमिक, Monoatomic. मोनोएटॉमिक। तो वहां पर कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मेटालिक बॉन्ड, Electrovalent. Metallic bond. मेटालिक बॉन्ड बेटा, ओनली सोडियम में कैसा बॉन्ड होगा, मेटालिक। इलेक्ट्रोवैलेंट तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में होगा, कैन यू गेट इट, सोडियम पीस में, आयरन पीस में, मैग्नीशियम पीस में क्या बॉन्डिंग होगी, मेटालिक बॉन्डिंग। कैन यू फॉलो नाउ? Yes, ma'am. Did you get the difference between electrovalent? Electrovalent is for different type of species. एक rich होना चाहिए, एक poor होना चाहिए। Same category के लोग कभी rich और poor हो सकते हैं क्या? Same type के people, No, ma'am. they can't, जितने powerful तुम हो उतने ही हो मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आती है metallic bonding. Now what is a metallic bonding? Actually in metallic bonding, see, metals are what, solids, so they are going to be closely packed or loosely packed, closely packed or loosely packed. Closely packed. Yes, their metals are solid, strong solids in fact, so the metals are going to be closely packed. Okay, now because of this closely packed, you can think what happens, metals are like this, they are placed like this, and because उनका जो वो होता है ना, like electrons जो होते हैं, they are loosely bound electrons, तो वो क्या होते हैं, वो इधर ऐसे निकल करके खड़े होते हैं। So you can say what is metallic bonding, ये तुम्हारा sea of electrons है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे होते हैं फ्री, जैसे रेसेस में तुम घूम रहे होते हो, सारे टीचर्स एक रूम में पैक्ड हैं, तो वैसे ही जब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निकल जाएंगे और ये जो पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स बचे रह जाते हैं, उनको वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, दैट इज व्हाई मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। Ma'am, so kernels is basically the positive part of the atom left after you remove the free electrons. After the free electrons are removed, Yes. then we Yes. call them as kernels. Yes. Kernels are, you can say, the cation of the metal after removal of free electrons. Okay. After free electrons are removed, that is the reason metals are lustrous, क्योंकि free electron है, तो जैसे ही हल्की फुल्की लाइट भी पड़ती है रूम टेम्परेचर पे, तो the electrons get excited, they jump to the higher energy level, and when they come back, you see that luster. Yes, ma'am. Okay, that is the reason they are good conductors, क्योंकि हमें ज्यादा effort नहीं लगाना पड़ता इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए. Is it fine? All the properties which you have studied. Yes, ma'am. And because they are closely packed, हम तो सिर्फ internuclear distance निकाल पाते हैं. तो over here, when you will calculate the metallic radius, you will say it will become r/2, and this is, can you say, isn't it equal to the actual radius? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, approximately near to the actual radius. And then comes the last one, van der Waals forces, जिसको हम लोग कभी use करते हैं for noble gases only.
क्योंकि नोबल गैसेस का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो दूसरे किसी फ्रेंड से साथ बॉन्डिंग क्यों करेगा? क्योंकि उसको तो सेल्फ सेटिस्फाइड स्पीशी है ना, तो वो किसी और के साथ बॉन्डिंग क्यों करेगा? तो जब कभी हम लोग केमिस्ट्री में फोर्सेस नहीं एक्सप्लेन कर पाते कि तुम्हारी फ्रेंडशिप क्यों हुई, तो हम उसको किस कैटेगरी में डाल देते हैं? वैन डर वाल्स कैटेगरी में डाल देते हैं। जैसे वाटर लिया, उसको ग्लास में फिल किया, उसको टर्न इट अपसाइड डाउन, यू विल सी सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर स्टिल remaining on the tumbler. What Yes. is the force which is holding them? Why isn't gravity acting on it? So वहाँ unexplained forces हो गए, तो हम उसको बोल देते हैं ये इसके बीच में कौन से forces हैं? Van der Waals forces. Can you follow what is Van der Waals forces now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So Van der Waals forces. So unexplained forces. तो ऐसे ही noble gases के बीच में कैसे forces होंगे? Helium, neon, argon, which are existing monoatomically, but they are gases. So gases means what? They are going to be closely packed or loosely packed? And loosely packed. Loosely packed. Loosely packed का मतलब क्या हो जाएगा? एक एटम और दूसरे एटम के बीच में डिस्टेंस होगा, isn't it? So ये Van der Waal जब रेडियस निकालोगे तो क्या निकालोगे? Again you are going to do r by 2, and this time it will be greater than the actual radius. ओके मतलब मोनोटॉमिक स्पीशीज दो तरीके की हो सकती है, या तो हार्ड होंगी लाइक मेटल्स, दैट मींस दे आर क्लोजली पैक्ड, और दे आर गोइंग टू बी वेरी लूजली बाउंडेड लाइक नोबल गैसेस, दैट मींस दे आर लूजली पैक्ड। तो उस टाइम पे रेडियस बड़ा हो जाएगा, और क्लोजली पैक्ड में रेडियस जो है अप्रोक्सीमेटली एक्चुअल के बराबर आएगा। कैन यू गेट द डिफरेंस नाउ? कैन यू गेट द डिफरेंस Yes, नाउ? सो इफ आई वांट टू राइट द रेडियस, द ऑर्डर, तो कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटा होगा, फिर कौन होगा? A metallic radius. यस, उससे एक्चुअल के बराबर हो जाता है मेटालिक रेडियस, और सबसे बड़ा कौन हो जाता है? Van der Waals Van der radius. Waals radius. Is it fine? Yes, ma'am. Shall we move ahead? Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो अब हमें क्या पढ़ना होता है? ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, हाउ विल दिस वैरी? Trends in periodic table, how will it vary if I move in a particular direction in the periodic table? So हम periodic table में कैसे move कर सकते हैं? दो तरीके से move करते हैं, एक तो top to bottom और एक left to right, ऐसे move करते हैं, ठीक है? So see, if I move from top to bottom, पहले चीज देख लेते हैं। If I move from top to bottom, ओके तो हम लोग कोई एक ग्रुप चूज कर लेते हैं और उसमें से तुम्हें समझाते हैं। तो टेल मी, कोई भी ग्रुप चूज करो एक। मैम ग्रुप 13। चलो तुम ग्रुप 13 चूज कर लो। ग्रुप 13 में नहीं लूंगी, वो थोड़ा एक्सेप्शनल केस होता है। कोई भी और ग्रुप चूज कर लो। I'm 15. मैम 1। ग्रुप 1, चलो तो ग्रुप 1 में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड देन फ्रांसियम, ठीक है? सो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक बारी तुम अपने मेथड से लिख लो। तो देखो पहले क्या लिखोगे? यहाँ पे 1 लिखोगे, फिर कैसे लिखोगे हो? 2 and 1। देन हाउ विल यू राइट? 2 8 1। फिर कैसे लिखते हो? 2 8 8 1, ऐसे लिखते हो ना? यस मैम। देखो मैजिक नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है। फर्स्ट मैजिक नंबर 2, देन 8 एंड देन 8। Yes, तो ma'am. ऐसे भी लिख सकते हो। अब जैसे रुबिडियम का लिखने को आता है तो कैसे लिखेंगे? नेक्स्ट मैजिक नंबर आफ्टर 8 इज 2 times 8 is repeated, then what is it? I'm 18. 18 कौन से शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? फर्स्ट में, सेकंड में कि एंड आफ्टरवर्ड्स? किस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? किस ऑर्बिट में 18 हो सकते हैं? Ma'am, the third. तो आई विल राइट 18 क्योंकि 8 1 बार बार रिपीट होगा, एंड देन 8 एंड देन 1। नेक्स्ट मैजिक नंबर बोलो आफ्टर 18। व्हाट इज द नेक्स्ट मैजिक? अगेन 18। तो क्या लिखेंगे? 18 18 8 एंड 1। ये वाला मेथड समझ में आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का? Yes, ma'am. एंड देन व्हाट इज द नेक्स्ट मैजिc number? What is the next magic I'm number? 32. Yes, तो उस 32 कौन से शेल में आएगा? कौन से ऑर्बिट में आएगा? Ma'am, fourth. 32 and then 18 and then 8 and 1. Can you follow? 8 Yes, and 1 ma'am. is repeated.
Now see, someone asks you to write the electronic configuration of francium. ठीक है, प्रॉपर वे में, मतलब Aufbau's वाले रूल में. ठीक है, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? It lies in which period? It will have Seventh. 7. That means it will have 7 orbits. Yes, ma'am. And Yes, it is ma'am. in group 1. That means it will have how many valence electron? 1. 7. 7s1 लिखोगे? Yes, ma'am. S ब्लॉक एलिमेंट है, ग्रुप 1 को लाई करता है, 7s1 लिखोगे. अब 7s से पहले कौन आया होगा? 6th पीरियड फिल हुआ होगा कि नहीं? 7th पीरियड आने से पहले you will fill the 6th period or not? Yes, ma'am. What is the configuration of 6th period? 6s2 and 6p6. अब 6s2 और 6p6 के बीच में कौन लाई करेगा? 6s2 4F and 14 5. and 5d 10. Now check yourself. 4f 14 अगर आ रहा है तो उससे पहले कौन आया होगा? 4s2 भी आया होगा, 4p6 भी फिल हुआ होगा और 4d 10 भी फिल हुआ होगा, तभी तो 4f 14 आएगा. Aufbau's rule यही कहता है ना. Yes, ma'am. So tell me how many electrons in the 4th orbit? 4th orbit will contain how many electrons total? 32. 32. See, is it containing 32 electrons in the 4th orbit? Yes, ma'am. दोनों मेथड से समझ में आया? Yes, चलो ma'am. 5d कब आएगा? उससे पहले 5th के कौन से सबशेल आएंगे? 5th ऑर्बिट के कौन से सबशेल आएंगे बिफोर 5d? बिफोर 5d 5th ऑर्बिट के कौन से सबशेल्स आएंगे? 5s and 5p. Yes, and they will be fully filled. That means 5s2, 5p6. Now count and tell me how many I'm electrons 18. can be contained in the 5th orbit. I'm 18. Is it containing 18 electrons? Yes, ma'am. Okay. Then tell me 6th orbit में कितने electrons होंगे? I'm 8. 8. We are writing 8. And 7th orbit में कितने होंगे? Ma'am, 1. Method समझा? Yes, ma'am. Aufbau's principle का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को आता है तो कर पाओगे ना. जैसे फॉर एग्जांपल एक और बारी प्रैक्टिस कराते हैं. 6th पीरियड सीजियम का लिखने को आएगा. दैट मींस व्हाट विल बी द लास्ट सबशेल? व्हाट विल बी द लास्ट सबशेल? I'm 6s1. 6s1. 6s1 कब फिल होगा? उससे पहले क्या फिल हो चुके होंगे? 5th पीरियड. 6th Yes. पीरियड से आने से पहले 5th पीरियड फिल हो चुका होगा. 5th पीरियड का मतलब क्या हो गया? विल देयर बी 3f n-2f होता है ना, तो 5th पीरियड में f कौन सा चलेगा? 5th पीरियड के साथ f कौन सा चलेगा? Which f will come? ns np के बीच में f कौन सा होता है बेटा? Why are you people so blank? n-2f n-2f. तो 5th पीरियड के साथ कौन सा f होना चाहिए? 3f. 3f. Does 3f exist? No, No, ma'am. ma'am. तो इसलिए 3f लिखने की जरूरत है क्या यहाँ? No, ma'am. No, ma'am. नहीं. फिर d कौन सा एग्जिस्ट करेगा? 4d. 4d एग्जिस्ट करता है. 4d एग्जिस्ट करता है. Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. फिर उसको लिखने की जरूरत है या नहीं है? Yes, ma'am. ठीक है. Now tell me how many electrons in the 4th orbit? How many electrons in the 4th orbit? 4s, 4p, 4d. काउंट करके बोलो. 18. 18. 18. मैंने 18 लिखे हैं. Yes. Yes, ma'am. How many electrons in the 5th orbit? 8. Ma'am, We have written 8. And Yes. how many electrons in the 6th orbit? 1. That's what we have written correctly. Yes, ma'am. Did you get it? Yes, Yeah. ma'am. ठीक है. चलो अब तुम लोग खुद से ट्राई करो जरा. सपोजिंग ग्रुप 2 की बात करते हैं या ग्रुप 14 की बात कर लेते हैं. ठीक है. ग्रुप 14 में फर्स्ट पीरियड में तो कोई नहीं आता. ठीक है. सेकेंड पीरियड में कौन आता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, tin and lead. Okay, now write the electronic configuration of lead according to Aufbau's principle. Try karo. 3, 4, 5 and 6.
राइट इट। लास्ट में क्या आएगा बेटा? 14 का मतलब क्या आएगा? इज इट एन एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट? मैम P block. P block. P block 14 का मतलब it has how many outer electrons? 4 electrons in the outermost shell. Yes, ma'am. तो क्या हो जाएगा? लास्ट में क्या आएगा? 6s2, 6 पीरियड है तो 6s2 6p2। आउटर मोस्ट में यही लिखेंगे। Yes, ma'am. दिस इज अ P ब्लॉक, ठीक है। और P ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है? P1 P2। ग्रुप 13 will be P1, ग्रुप 14 means P2 or not? Yes, ma'am. अब 6s और 6p के बीच में कौन लाई करेगा? बोलो। 5FM 5B. 4f14 4F14 and and 5d10, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मुझे उस वे में लिखना हो तो इसमें 6 ऑर्बिट्स आने हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6। 6th ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6th ऑर्बिट में 4। फिर 5th ऑर्बिट में कितने होंगे? देखो 5d10 देख करके बोलो। 5s 5p 5d कितने हो जाएंगे? 18। 4th ऑर्बिट में कितने होंगे? 4s 4p 4d फिर 4f आता है 32. 32. 32. और फिर 3rd ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3rd फिल हुआ होगा तभी तो 4th फिल होगा ना। एंड 2nd ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 1st ऑर्बिट में कितने हो सकते हैं? तो कैन यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोथ द वेज? Yes, ma'am. ठीक है, चलो 10 का लिख के दिखाओ। कैसे लिखोगे? 5s2 आएगा और 5p2 आएगा। बीच में क्या आएगा? 4D. 4d10. So now fill it. How will you do it? 2 8 18 18 and 4. Check karo. Yes. Isn't it? Do you follow now? Can you follow now? Yes, ma'am. Next one will be what? 18 and 4, मतलब 4 होता जाएगा। सिलिकॉन का तो तुम्हें लिखना आता ही है ना? Yes, Then this is what 2, 4. Can you follow? yes, ma'am. Very good. So now see, as you're moving down the group, what is happening? What is happening as you're moving down the group? Aren't you seeing there is an addition of an extra energy level? Yes. Every time I'm moving down the group, there is an addition of an extra orbit. Yes, ma'am. और तुमने अभी अभी पढ़ा ही था लास्ट चैप्टर में Rn is proportional to n square upon z। मतलब अगर R1 a0 है तो R2 4 a0 हो जाता था, R3 9 a0 हो जाता था। तो what happens when you increase the number of orbit? As the principal quantum number increases or number of orbit increases, the atomic radius increases or decreases? Increases. Increases. Why it increases? Due to the addition of extra energy level. Can you understand this thing? Yes, ma'am. So as you move along the group, मतलब group को constant रखते हो, period vary करता है, that is from top to bottom. What happens? Atomic radius will, what will happen to atomic radius? It will Ma'am, increase. increase. ठीक है? It will increase. Why will it increase? Due to the addition of extra energy level, or you can say orbit. Can you follow till here? Yes, ma'am. Okay. अब देखो, अब हम दूसरे डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। टॉप टू बॉटम तो क्लियर हो गया। अब दूसरे डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो दूसरा डायरेक्शन क्या है? इफ आई मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या चीज कांस्टेंट रहेगी और क्या वेरिएबल होगा? क्या चीज कांस्टेंट होगी और क्या वेरिएबल होगा? Ma'am, the Period will remain constant, yes. but the And group change. जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग द थर्ड पीरियड, तो क्या हो जाएगा? थर्ड पीरियड में ग्रुप होगा 1 2 5 3 to 12 एब्सेंट होता है, फिर 13 फिर 14 फिर 15 फिर 16 फिर 17। तो यहाँ पर कौन आता है? सोडियम, फिर मैग्नीशियम, then aluminium, then silica, then Silicon, phosphorus, Yes. sulfur, chlorine. and chlorine. ठीक है। Now if you write their electronic configuration, so this is going to be 281, this is going to be 282, this is going to be 283,
284, 285, 286, 287. Now tell me number of orbit is same or is it variable? All of them are having 3 Same. orbits. ठीक है, तो कैन आई अप्लाई जो हमने लास्ट में लगाया था, अभी यहाँ पर हम लोग लगा रहे थे जो कॉन्सेप्ट, क्या वो यहाँ पे लगा सकते हैं? क्या वो थ्योरी यहाँ पे लग सकती है? नंबर No, ऑफ ma'am. इट इज फेलिंग। तो जब हमारी पहली थ्योरी फेल हो जाती है, जहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम आ जाते हैं, तो हमें क्या लगाना पड़ता है? दूसरा थ्योरी लगाना पड़ता है। तो दूसरा थ्योरी क्या है वो अब देखते हैं। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट इज सेम, तो इसलिए हमारी पहली जो थ्योरी पढ़ी थी वो जो है वो फेल कर गई। ठीक है, बट नंबर ऑफ ऑर्बिट इज सेम, बट व्हाट इज वेरिएबल? चेक इट आउट। Valence electrons. Valence electron. Valence electrons. Valence electron, or can I say atomic number is increasing on moving left to right? Yes, ma'am. Atomic number is increasing. अब एटॉमिक नंबर से इंक्रीज होने से क्या होता है? देखो क्या होता है, अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे। टेल मी, एटॉमिक Yes, नंबर ma'am. बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस विल इंक्रीज। Yes, ma'am. ठीक है, नाउ हाउ, मतलब एटॉमिक रेडियस क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। होता है कि नहीं होता है? Yes, ma'am. ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हेल्ड होता है कि नहीं? द इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड बाय द न्यूक्लियस बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Yes, ma'am. नाउ यू कॉल दिस फोर्स, अब तुम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं बोलोगे, क्यों? कि वो फिजिक्स वालों की चीज है। केमिस्ट्री वाले क्या बोलते हैं उसे? दे कॉल इट एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। Effective nuclear charge. इन केमिस्ट्री तुम्हारे जब बोर्ड मतलब स्कूल के एग्जाम आएंगे, उसमें जब थ्योरी वाला एग्जाम होगा, अगर तुमने उसमें ये लिखा फोर्स बाय व्हिच द न्यूक्लियस इज पुल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज पुल्ड बाय द न्यूक्लियस, तो हो सकता है टीचर मार्क्स ना दे, लेकिन अगर तुमने लिखा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो दे विल गिव यू मार्क्स। ठीक है, दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू राइट दिस टर्म, यू हैव टू यूज दिस टर्म। ठीक है, सो इतना बड़ा मैं तो नहीं लिख पाऊंगी, तो मैं इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख रही हूँ। सो व्हाट इज इट? Force by which electron is pulled by the nucleus, by the nucleus। अब देखो जैसे जैसे हमारा, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या हो जाता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता नहीं है, वो तो सेम डिस्टेंस पे रहता है। लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ने से डोंट यू थिंक अंदर से प्रोटॉन की जो पुलिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर रही है? अंदर का मैग्नेट इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। Yes, ma'am. So more force of attraction from the nucleus. Yes, ma'am. ठीक है, and more force of attraction from the nucleus, what do you think will happen to the electron? Don't you think electron will come closer or farther away? It will come Closer. Closer. Come closer, and what will happen to the, तो देखो इसके आने की वजह से क्या होता है? वैसे तो यहाँ पे रहना चाहिए, मतलब 9a0 ये है, सपोजिंग दिस इज थर्ड ऑर्बिट, 9a0 ये होना चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ द हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देयर विल बी अ short decrease in the atomic radius. Can you follow my point? This should be the actual one, but because of high nuclear charge there is a short decrease. Can you get it? Yes, ma'am. ठीक है, तो व्हाट हैपेंस, अगर हम रिलेशनशिप देखें तो क्या होगा? एटॉमिक नंबर बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या हो जाएगा? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है? And atomic radius decreases. ओके, बट ये कब वैलिड होगा? जब नंबर ऑफ ऑर्बिट Ma'am, जब number of- constant. It remains constant. सेम रहेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम रहेगा। तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिट मतलब जैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पर भी देखो, जैसे जैसे तुम्हारा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था, जैसे जैसे तुम्हारा एटॉमिक, यहाँ पे भी देखो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था। Over here also the atomic number was increasing, effective nuclear charge was also increasing, but along with effective nuclear charge the distance from the nucleus is also increasing. See over here, atomic number पे भी dependent है और number of orbit पे भी dependent है, लेकिन किस पे ज्यादा dependent है?
n स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, किस पे ज्यादा डिपेंडेंट है, Number मोर of डिपेंडेंसी orbits. किस, Number of orbit. यस नंबर ऑफ ऑर्बिट। देखो वो स्क्वायर हो गया, मतलब तुम एटॉमिक नंबर थोड़ा बढ़ा पाओगे, लेकिन ये स्क्वायर होने से थोड़ा भी बढ़ाने का मतलब है ज्यादा बढ़ जाना, 2 बढ़ाने का मतलब है 4 बढ़ जाना, 3 बढ़ाने का मतलब है 9 बढ़ जाना। So more dependency is on number of orbit, but if number of orbit is same, then dependency comes on atomic number or effective nuclear charge. Can you get it? Atomic number is increasing, so Z effective is increasing. Z effective increases, that means more attractive forces. That means what? Atomic radius will Decrease. Decrease. Can you get it? Yes. ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे, अच्छा अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ने, सॉरी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से शॉर्टेज आ जाती है, डिक्रीज कर जाता है, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, मतलब जैसे गोल्ड वगैरह, उसका तो एटॉमिक रेडियस और छोटा हो जाना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं होता है। उसका रीजन क्या है, ये जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है अंदर से पुल तो बढ़ता है, लेकिन पुल के साथ साथ अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्स। यस, तो ये है हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दिस वन इज द पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है, लेकिन वो अंदर आना भी चाहता है, लेकिन जो ये पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन्स हैं, ड्यू टू द लाइक चार्जेस इन देम, दे स्टार्ट रिपेलिंग। ओके, दे स्टार्ट रिपेलिंग, दे आल्सो क्रिएट एज द रिपल्सिव फोर्स। तुम अंदर आना चाहते हो, लेकिन ये क्या है, दे विल एक्ट एज अ बैरियर। डोंट यू थिंक सो? This electron and Ma'am, that would be in the case that they are exactly parallel to each other, right? yes, one is attractive force and one is the repulsive force. Okay, Yes, ma'am. although attractive force will be higher and that is the reason the electron is held by the nucleus, repulsive force थोड़ा कम लगता है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही अंदर घुस जाओगे आकर, ठीक है। Yes. That is why you can say atomic number का जो डिपेंडेंसी है वो कम है। क्यों? क्योंकि इसको काउंटर करने के लिए अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, शील्डिंग इफेक्ट इज प्रेजेंट। यू नो व्हाट इज अ शील्ड? वो Yes, जो पीरियोडिकल मूवीज देखी है ना, उसमें या पीरियोडिकल सीरियल्स देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है, व्हेन दे आर फाइटिंग विद बोज एरोज, दे पुट अ शील्ड इन फ्रंट ऑफ देम, अ स्क्रीन, Yes, ma'am. ठीक है, तो which is acting as a barrier, your wall is acting as a barrier or a shield between two rooms, so that is this जो inner electron से repulsive force आता है, उसको हम बोलते हैं shielding effect. Okay, so what are the factors, अगर मैं तीनों चीजों को क्लब करके बोलूं, factors governing atomic radius, कौन कौन सी चीजें हैं जिसको atomic radius govern करता है, तो सबसे पहला फैक्टर कौन था इसमें, number of orbit, ठीक है, तो n increases, atomic radius increases. You know about this thing, इसमें तो ज्यादा explanation की जरूरत नहीं है ना। No. Tell me. फिर effective nuclear charge, ये कैसा force है, attractive या repulsive? Which type of force is it, effective nuclear charge? अगर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा तो शॉर्टेज होगी एटॉमिक रेडियस में या बढ़ जाएगा? शॉर्टेज होगी। एटॉमिक रेडियस और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में कैसी रिलेशनशिप है, इनवर्स या डायरेक्ट? Inverse. लेकिन ये कब फॉलो करनी है, जब कंडीशन नंबर 1 फेल हो जाती है, जब नंबर ऑफ ऑर्बिट इज सेम, देन ओनली यू विल गो टू कंडीशन नंबर 2। एंड फिर इसका मतलब है, लोग ये बोलेंगे कि बहुत ज्यादा एटॉमिक नंबर मतलब बहुत शॉर्टेज आ जानी चाहिए, तो वो नहीं आ पाती है। क्यों नहीं आ पाती है? बिकॉज देन देयर इज अनदर इफेक्ट व्हिच इज काउंटरिंग, दैट इज कॉल्ड एज शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। So what is shielding or screening effect? The inner electrons, It is repulsion of outer electrons by inner Yes. shell electrons. yes, so this is a repulsive force. इसकी वजह से फिर expansion आ जाता है। देखो इसकी वजह से attraction आया, लेकिन इसे धक्का मार दिया, फिर repulsion आ जाता है। And that is why I was telling you कि although effective nuclear charge is increasing, but the decrease in atomic radius is very short. बहुत minor सा decrease होता है। Can you get it? The Yes. inner electrons
produce a repulsive force due to like charges, preventing further decrease in radius. बहुत ज्यादा decrease नहीं आ पाता है. Can you get it now? Yes, ma'am. ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो एटॉमिक रेडियस किस पे गवर्न होता है, जो मतलब इन दोनों का नेट इफेक्ट आता है, मतलब उसमें से भी z ज्यादा बड़ा होता है और ये कम होता है. ठीक है, तभी तो इलेक्ट्रॉन उसके रोटेट कर पा रहा है. अगर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम अ फ्री इलेक्ट्रॉन. डोंट यू थिंक सो? Yes, ma'am. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज वेरी हाई एज कंपेयर्ड टू शील्डिंग, लेकिन शील्डिंग इसको बहुत अंदर नहीं आने देता है. दोनों चीजों का डिफरेंस क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, हाँ. Ma'am, so metals have like better shielding or screening effect. I'll tell you about that also. Metals अभी मैं धीरे धीरे एक स्टेप वाइज थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ तुम्हें. ठीक है, तो यहाँ देखो क्या होता है, जो शील्डिंग इफेक्ट होता है ना वो उस पे गवर्न होता है कि आप कौन से सबशेल की बात कर रहे हो, मतलब कौन सा इनर इलेक्ट्रॉन्स आपको शील्डिंग दे रहा है. ठीक है, सो जो एस सबशेल होते हैं ना, ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट की बात करें, ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, तो वो सबशेल गवर्नड होते हैं. तो एस सबशेल जो होता है वो सबसे ज्यादा रिपल्सिव फोर्स देता है, मतलब शील्डिंग इफेक्ट मैक्सिमम आता है. एंड देन पी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फिर थोड़ा और कम देते हैं, और डी एंड एफ शील्डिंग तो देते हैं लेकिन इनकी जो शील्डिंग होती है लगभग निग्लेजिबल होती है. ओके, कैन यू गेट माय पॉइंट? Ma'am, how has this been determined? Ma'am, the order of screening effect. There is a mathematical calculation to determine that what I'll discuss in the next class. Right now I'll not. Okay, otherwise it will be totally बहुत confusing. ठीक है, Yes, ma'am. अभी नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा. तो अभी So just one thing I had to ask. yes, Ma'am, so for the screening effect to take place, ma'am, to a substantial extent, the whatever outermost electron is there, that has to be within the whatever penultimate electron's electric field. It should be within that point, right? yes. अरे actually when you will increase the effective nuclear charge, अगर ये increase करोगे तो obviously the electron will try to come closer. Yes, ma'am. That's true. Yes, और यहाँ पे पहले से ही guards present है, Yes, ma'am. so obviously they will start providing you the screening effect. Yes, ma'am. ठीक है, दैट इज वाई बहुत ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर वो एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा बढ़ाने पर डिक्रीज बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं आ पाता. क्यों? क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन्स इसको रिपल्शन कर देते हैं. और दूसरा डी एंड एफ का निग्लेजिबल क्यों? क्योंकि पहले एस आते हैं फिर पी आते हैं. तो एस और पी ऑलरेडी इतने मतलब क्या होता है ना, जैसे एक तुम्हारा एक फोर्ट है, तो फोर्ट पे अब तुमने एक रेंज पर लोगों को खड़ा कर दिया ऐसे कर करके. अब ये रेंज क्या हो सकता है, ये पर्सन जो है वो इतना पोर्शन कवर कर लेगा, इतना पोर्शन कवर कर लेगा, ये पर्सन इतना कवर कर लेगा, इतना कवर कर लेगा. ठीक है, अब उसके बाद में अगर तुम इसके बीच में इन और लोगों को लाके खड़ा कर दोगे तो क्या उससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी? मतलब ये जो ये दो लोग थे ये ऑलरेडी इतने पोर्शन को एरिया को कवर कर रहे थे, तो इनके आने से कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस तो पड़ेगा नहीं. Yes, ma'am. Their need becomes redundant. So that's what happens. S और P sufficiently पहले आते हैं और वो ऑलरेडी इतनी स्क्रीनिंग क्रिएट कर देते हैं कि D और F के आने से वो सिर्फ ओवर क्राउडिंग कर रहे होते हैं. सफिशिएंट स्क्रीनिंग जो है S और P के आने से पहले ही हो चुकी होती है. Can you get my point? Yes, ma'am. ठीक है, सफिशिएंट स्क्रीनिंग इनके क्योंकि पहले ये आते हैं तो ये दोनों मिलकर के इतनी स्क्रीनिंग कर चुके होते हैं कि डी और एफ आने से बहुत ज्यादा नहीं फर्क पड़ता है अपने. मतलब वही चीज होती है ना, जैसे मैग्नेट को रिपल्शन करना, तो एक रेंज के बाद में क्या हो जाता है, तुम लगा लो फर्क नहीं पड़ने वाला है हमें. जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम अपनी स्किन में ऑयल डाल रहे हो तो उसके बाद में क्या होगा, एक
एक अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी है, उसके बाद में तुम्हारा ऑयल वेस्ट ही जा रहा है ना, Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. तो वही चीज है यहाँ पर, गेटिंग है, उसके बाद में तो वो वेस्ट ही जा रहा है। तो डी एंड एफ, क्योंकि एस&पी पहले ही इतना सफिशिएंट क्रिएट कर चुके होते हैं कि डी एंड एफ के आने से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता। नाउ फाइन, Yes, ma'am. ठीक है, चलो फिर लेट्स गो विद द नेक्स्ट थिंग। हाँ, सो द फैक्टर्स, डिड यू गेट इट? Factors, you get it? So Yes. on moving from left to right, what will happen to atomic radius? It will decrease because number of orbit is same and effective nuclear charge is increasing. Is it fine? Yes, ma'am. इतना पार्ट रहेगा इसका। Coming to the next thing. Yes, coming to the next thing. देखो अब next जैसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर क्वेश्चन आता है नॉर्मल कि एक ग्रुप के लिए लिखा गया, एक पीरियड के लिए लिखा गया, वो तो तुम कर ही लोगे, लेकिन अगर जम्बल्ड आ जाता है तो कैसे करना है? जैसे अगर फॉर एग्जांपल दे आस्क यू टू अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ atomic radius. If someone asks you to arrange the elements in the increasing order of atomic radius, elements are sodium, potassium, जर्मेनियम, कार्बन, बताओ कुछ कुछ एलिमेंट्स के नाम। क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, Green. ऑक्सीजन, फास्फोरस, ठीक है, ऐसे कुछ एलिमेंट्स लिख दिए। तो अगर इनको अरेंज करने को बोला जाता है तो तुम्हें क्या करना है? यू हैव टू मेक अ रफ पीरियोडिक टेबल। You have to make a rough periodic table. So see, this will belong to third period, this will belong to fourth period, but they will belong to the same group. Can you check it? Yes, ma'am. तो ऐसे कर करके अरेंज करना स्टार्ट करो। तो ये देखो, ये भी सेम ग्रुप को होगा, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है, सोडियम देन पोटेशियम। ये भी सेम ग्रुप को होगा, 2, 8, 18 एंड 4। तो यहाँ हमने लिखा कार्बन, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप में लाई करेगा, ये थर्ड पीरियड था तो ये सेकंड पीरियड में लाई करेगा, और ये पोटेशियम के साथ फोर्थ पीरियड में ही लाई करेगा, तो जर्मेनियम यहाँ लिख दिया। सिमिलरली क्लोरीन कहाँ लाई करेगा? थर्ड पीरियड में, कोने में। सेकंड पीरियड में यहाँ ये लाई करेगा। सल्फर कहाँ लाई करेगा? यहाँ। ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, देखो सारे एलिमेंट्स अरेंज हो गए रफ पीरियोडिक टेबल में। Can you see all the elements are arranged in the rough periodic table? Yes, ma'am. And then we already know on moving left to right it will decrease, on moving top to bottom it will Ma'am, increase. increase. पोटेशियम का बड़ा होगा या जर्मेनियम का बड़ा होगा एटॉमिक रेडियस? And potassium. पोटेशियम। पोटेशियम। सो पोटेशियम ज्यादा, जर्मेनियम कम, ठीक है। फिर सोडियम, फास्फोरस, सल्फर में किसका ज्यादा होगा? सोडियम विद मैक्सिमम। अच्छा, अब ये हो गया, तो यहाँ लिखा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। अब पोटेशियम और जर्मेनियम में किसका ज्यादा होगा? जर्मेनियम का ना, उसके पास 4 पीरियड्स हैं, 4 ऑर्बिट्स हैं, और सोडियम के पास तो सिर्फ 3 ऑर्बिट्स हैं। देखो किसका ये बड़ा होगा? Who will be larger? जर्मेनियम। Can you get how to relate them? Then over here also this will be like this, and then carbon और क्लोरीन में किसका बड़ा होगा? Carbon मैम और क्लोरीन। क्लोरीन। Ma'am, chlorine. So now see, can you arrange the order now? Did you follow the order now? Yes. Yes, ma'am. हाँ हाँ, किसका? ठीक है, did you follow till here? Did you follow till here? Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम है?
No, ma'am. नेक्स्ट करें फिर. Yes, ma'am. Okay, so see, if someone asks you what is going to be the, किसका मतलब atomic radius maximum होगा in the whole periodic table. Okay, maximum atomic radius in whole periodic table. तो किस पोर्शन में वो लाई करना चाहिए? मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस कहाँ पे लाई करना चाहिए? सबसे inert डाउनवर्ड gases, में एंड सबसे Inert लेफ्ट gas. में या राइट में? वेयर? सी, डाउनवर्ड एंड राइट, लेफ्ट. चेक इट. Yes, ma'am. It should be in group 1. ओके, और मैम ये inert किससे gases का इनसे ज्यादा नहीं होगा? क्या? inert gases जो होती है उनका बेटा इनसे बाद ज्यादा में होगा? बात करते हैं ना, अभी मैंने कहीं पे इनर्ट गैसेस का डिस्कशन नहीं किया है, और क्यों नहीं होगा उसका भी मैं भी डिस्कस करती हूँ. ठीक है, तो तुम्हें हाफ नॉलेज है जिसको तुम इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हो. ओके, सो नाउ सी, इनर्ट गैसेस का तो डिक्रीज करेगा ना लेफ्ट टू राइट जाने पर. इनर्ट गैसेस यहाँ होती हैं. कैन यू गेट माय पॉइंट नाउ? यहाँ तो मैक्सिमम होगा लेफ्ट में. बोलो, तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ या Ma'am, नहीं? but inert हाँ, gas, but inert ma'am, but gas inert बेटा जो gases तुम में बोल रहे हो shield. रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, उसको भी मैं डिस्कस करवाऊंगी. ठीक है, बट यू टेल मी योरसेल्फ, जितना मैंने बताया उसके हिसाब से बताओ. जो तुम जो सोच रहे हो वो गलत ही सोच रहे हो, इसलिए मैं कुछ रुक जाने को बोल रही हूँ. ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, दे राइट लाइंग ऑन द राइट साइड, दैट मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज हाई. Yes, ma'am. ठीक है, तो उसका एटॉमिक रेडियस कम होगा या नहीं होगा? Ma'am, होगा. ठीक है, तो बस उतना ध्यान रखो. ठीक है, मैम तुमने उसमें वॉन डेर वाल्स रेडियस अरे नहीं भाई कंसीडर कहानी करेंगे? खत्म करो ना. जितना मैं समझा रही हूँ पहले उतना तो समझ लो. दो चीजें, मतलब एक वो चीज होती है कि तुमने अगर ये समझ लिया ना कि मेरा ग्लास भरा है, मुझे ज्यादा आता है, तो तुम मेरी बात समझोगे ही नहीं. ठीक है, तो मैं जितना बता रही हूँ पहले उतना सुन लो, फिर जो तुम्हारी इंफॉर्मेशन है उसको भी मैं करेक्ट करके बता रही हूँ. ठीक है, तो गिव मी टाइम. तुम पहले ही सोच लोगे हाँ मुझे ज्यादा पता है, तो मेरी बात तो तुम्हारा माइंड हाफ हार्टेडली एक्सेप्ट करेगा ना. ठीक है, so when you are in a class, please try to be like an open, like an empty glass. Try to absorb what I am telling you. Okay, because you have half information, and half information is more harmful than no information, because no information means तुम नहीं attempt करोगे उस question को, zero लेके आओगे. half information तुम गलत करके आओगे और negative लेके आओगे. Getting my point? ठीक है, तो इसलिए तुम्हारी इंफॉर्मेशन हाफ है, तो प्लीज बिकम एन एम्प्टी ग्लास. फर्स्ट ट्राई टू अब्सॉर्ब व्हाट आई एम टेलिंग यू, देन यू पुट योर इंफॉर्मेशन. ओके, सो टेल मी योरसेल्फ, do you people agree, apart from these people, that the elements lying on the left side will have the maximum radius? Please tell Yes, me. ma'am. If you just wipe off whatever you are having in your mind and tell me the element on the left side will have the highest atomic radius. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Completely. Okay, so who will have the highest atomic radius? Bottom का left वाला कौन होता है? वो bottom का left Ma'am, वाला. Francium. Yes, so it has to be francium, but because francium और group 7 elements are radioactive, exist नहीं करते हैं, उनकी properties के बारे में ज्यादा नहीं पता है, तो इसलिए हम लोग उसकी जगह किसको यूज कर लेते हैं? सीजियम को ज्यादातर. Cesium. सीजियम ज्यादातर एक्सेप्टेबल होता है. अगर ऑप्शन में सीजियम लिखा है तो सीजियम मार्क कर सकते हो. ठीक है, लेकिन अगर सीजियम और फ्रांजियम, जो कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में कभी आएगा, अगर दोनों लिखे हुए हैं तो फिर ये. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. Ma'am, so basically, ma'am, since the atomic radius of cesium is the highest, ma'am, objectively speaking, यस. apart from radioactivity, so that's why its electropositivity is said to be the highest. यस, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. बेटा फिर से वही पुरानी चीजें नहीं लाएंगे. ठीक है, हाँ वैसे तुम सही बोल रहे हो, बट अभी आगे नहीं भागेंगे क्योंकि बाकी लोग ना फिर कंफ्यूज मार्क कर जाएंगे. ठीक है, Okay. ठीक है, हाँ, बट व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट. Fine. So now see, if I ask you who, मतलब basically what I wanted to tell you कि जो alkali metals होंगे, alkali metals, they will have the highest atomic radius in a period, because I'm moving left to right, it will keep on decreasing. Yes, Yes. ma'am.
have the highest atomic radius in a period. Okay, now if I ask you who will have the smallest atomic radius in the period, smallest, Ma'am, halogens. Some why halogens, not fluorine. smallest atomic radius in the period, in the whole periodic table, whole periodic Fluorine. table. ठीक है, तो भाई क्यों फ्लोरीन से ऊपर हाइड्रोजन हीलियम नहीं आते बेटा? Hydrogen. हाँ, so see, we should actually go for क्या जो यहाँ फर्स्ट पीरियड में प्रेजेंट होना चाहिए था और यहाँ एक्सट्रीम राइट में आना चाहिए था, लेकिन एक्सट्रीम राइट में कौन आ रहा है? हीलियम. Can you get it? First Yes. period, it should show the smallest one. Yes, ma'am. स्मॉलेस्ट होना चाहिए था, बट प्रॉब्लम क्या आई? अब यहाँ देखो, यहाँ तुम्हारा एक्सेप्शनल बिहेवियर आएगा. हमारे पास फर्स्ट पीरियड में स्मॉलेस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट जो एटॉमिक रेडियस होगा, ये तो समझ में आ गया, वो फर्स्ट पीरियड एलिमेंट में आएगा. Yes, ma'am. फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कौन से? हाइड्रोजन एंड हीलियम. ठीक है, अब जब हम हाइड्रोजन और हीलियम की स्टडी करते हैं तो हम कौन सा रेडियस लेते हैं? टाइप ऑफ रेडियस बताओ कौन सा लेते हैं? कौन सा मैम, रेडियस? हीलियम के लिए यहाँ वंडर पर वॉल. तुम लोगे कोवेलेंट रेडियस और Yes. यहाँ पे लोगे क्या? Ma'am, van der Waals van der radius. Waals radius. Now you have already done, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में तो बहुत ज्यादा इंक्रीज आ नहीं रहा. ये एटॉमिक नंबर 1 है, ये एटॉमिक नंबर 2 है. ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज नॉट इंक्रीजिंग बाय टू मच क्वांटिटी, बट वी हैव ऑलरेडी डन दैट कोवेलेंट रेडियस इज लेस देन दैट ऑफ van der Waals radius. Yes, ma'am. ठीक है, बिकॉज कोवेलेंट रेडियस इज लेसर देन दैट ऑफ van der Waals रेडियस, यहाँ पर ओवरलैपिंग आ जाती है, तो उसकी वजह से होना वैसे हीलियम को चाहिए बिकॉज इट हैज गॉट हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बट बिकॉज इन हीलियम वी आर कंसिडरिंग अबाउट van der Waals रेडियस. ओके, सो क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाली थ्योरी जो है वो फेल हो जाती है एंड ओवरलैपिंग थ्योरी काम कर जाती है, एंड दैट इज व्हाई वी से हाइड्रोजन का जो रेडियस है that is smaller than that of helium, although helium has high effective nuclear charge. So who is the smallest one? Who is the smallest one? मैम, हाइड्रोजन. Yes. So smallest किसका है? हाइड्रोजन का. और लार्जेस्ट किसका है? फ्रांजियम या फिर सीजियम. ये चीज समझ में आया? Yes, ma'am. And you have to learn this, क्योंकि इस चैप्टर में एक्सेप्शन से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि हीलियम का बड़ा है और हाइड्रोजन का छोटा है, although effective nuclear charge of helium is high. Okay, atomic radius of hydrogen is lower than helium despite of high effective nuclear charge on helium. Why it is high? Due to covalent radius. Can you get my point now? Can you Yes. get my point now? ठीक है. अच्छा, अब अगर मुझे पूछा जाए कि पूरे पीरियड में जैसे मैंने तुम्हें यहाँ सिखाया कि एल्कली मेटल्स का सबसे हाईएस्ट होगा पूरे पीरियड में, तो स्मॉलेस्ट किसका होगा पूरे पीरियड में? In a period, which group will have the smallest atomic radius? In a Technically period, alkali metals again. in a period, group with smallest atomic radius किसका सबसे स्मॉल होने वाला है? ठीक है, सो अब उसका रीजन देखो. अब यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज करता है कि नहीं करता है? ठीक है, तो एक्चुअल में कौन सा ग्रुप है जो सबसे लास्ट में लाई करेगा? कौन सा ग्रुप है जो सबसे Is this- लास्ट में लाई? मैम, इनर्ट गैसेस का. Noble. इनर्ट गैसेस का. तो आइडियली अगर किसी बच्चे से ये पूछा जाए तो वो बोलेगा इनर्ट गैसेस का जो ग्रुप है उसका एटॉमिक रेडियस सबसे लोएस्ट होना चाहिए. और इससे पहले कौन लाई करता है? Halogens. Halogens. हैलोजेंस. ठीक है, तो किसी वैसे बंदे से पूछा जाए जिसको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है या मतलब जो एक्सेप्शनल केसेस को बहुत ज्यादा नहीं देखा है, तो वो तो यही बोलेगा कि इनर्ट गैसेस का सबसे
लोवेस्ट होना चाहिए atomic radius because of high effective nuclear charge. But again, type of radius comes into being. So if you take that one, in this case, which type of radius we talk about? Some For covalent halogens, radius. covalent radius. And for this thing, which type of radius we talk about? Van der Waals radius. And which one is greater? Which one is greater among van der Waals and covalent? Van der Waals. Van der Waals is greater. Yes. So what happens is, although you can say group 18 elements, although group 18 elements have high effective nuclear charge, okay, high effective nuclear charge than group 17 elements, okay, but for atomic radius किसका ज्यादा हो जाता है? किसका ज्यादा ग्रुप हो जाता है? ग्रुप 18 का एटॉमिक रेडियस ग्रुप 17 एलिमेंट से बड़ा हो जाता है. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है? Because group 18 has van der Van Waals der Waals radius. radius, and over here we are taking covalent radius. See, we did ना Z effective is inversely proportional to radius. तो अगर हम उस हिसाब से चले तो ग्रुप 17 का बड़ा होना चाहिए, लेकिन ग्रुप 18 का कम होना चाहिए. लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम वैन डर वाल ले रहे हैं और वहाँ कोवलेंट ले रहे हैं, ग्रुप 18 का एटॉमिक रेडियस उसके हैलोजन से बड़ा हो जाता है. कैन यू गेट माय पॉइंट? क्लोरीन के बगल में कौन है? आर्गन. So radius of argon will be greater than radius of chlorine. You did na, radius of hydrogen became greater, sorry, radius of hydrogen became this than helium. Do you remember? Abhi abhi karaya, just because of the reason covalent and van der Waals. Similarly, radius of fluorine will become smaller than radius of नियॉन. इसका एटॉमिक नंबर 9 है, इसका 10 है, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम आएगी. कैन यू फॉलो माय पॉइंट? कैन यू फॉलो माय पॉइंट? ठीक है. तो तुम जो अभी मुझसे बोल रहे थे ना कि इनर्ट गैसेस सबसे बड़ा रेडियस शो करेंगी, तो बेटा वो नहीं करेंगी, क्योंकि एल्कली मेटल्स से यहाँ पहुंचने पे इनर्ट गैसेस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है. एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता जाता है. बहुत डिक्रीज आ चुका होता है, यहाँ तक वो छोटा हो चुका होता है, लेकिन अपने पड़ोसी के बराबर में, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिक्रीज जो होगा वो वेरी स्मॉल होगा. यहाँ वैन डर वाल ले रहे हो, यहाँ कोवलेंट ले रहे हो, तो अपने पड़ोसी से बड़ा हो जाता है. इसका मतलब ये नहीं कि एल्कली मेटल से बड़ा हो जाए. अपनी मिस्टेक समझ में आई जब मैं तुम्हें ये बता रही थी? तुम बार बार वैन डर वाल कोवलेंट कर रहे थे. एनी वन ऑफ यू? I think I was telling you this. Then someone was discussing about van der Waals and covalent. Then I told you, please listen to me first. Yes, Are you ma'am. there? Now did you get your problem? And your problem is sorted by now? Yes, ma'am. The effective nuclear charge का जो इफेक्ट है वो इतना हाई है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 8 एलिमेंट्स तक कि ग्रुप 18 का जो एटॉमिक रेडियस है वो एल्कली मेटल से ऑल्दो वैन डर वाल है, बट स्टिल इट इज स्मॉलर. ओके, एल्कली मेटल के कंपैरिजन में तो छोटा हो चुका है, लेकिन अपने पड़ोसी से बड़ा हो गया. उसी इफेक्ट को हमने पढ़ा. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है. ठीक है. जैसे अगर यहाँ पर मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन कराया था और मैं यहाँ पर एज एन एलिमेंट नियॉन को भी इंक्लूड कर देती, बाई चांस अगर मैं नियॉन को भी इंक्लूड कर देती, तो नियॉन का मतलब क्या है? वैसे तो ये ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन ये ऑर्डर ना लिख करके ये हो जाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कार्बन से भी बड़ा हो जाएगा. डिड यू गेट द डिफरेंस? डिड यू गेट द डिफरेंस? नॉट ग्रेटर देन ऑक्सीजन एंड कार्बन. ठीक है. तो जो उसकी पोजीशन आएगी वो कहाँ आएगी? यहाँ आ जाएगी, यहाँ पर. ओके ना? वैन डर वाल का इतना इफेक्ट नहीं है कि वो 2 ग्रुप्स को क्रॉस कर जाए, सिर्फ एक ग्रुप को क्रॉस कर सकता है. माय पॉइंट इज क्लियर? योर कंफ्यूजन इज क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है. तो दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू. Keep just wait and I'll discuss your point also. Ma'am, so cesium has the like
Ma'am, so cesium like has the greatest atomic radius and the entire periodic yes table. वैसे तो फ्रांजियम का होना चाहिए, बट क्योंकि फ्रांजियम हम पकड़ नहीं पाते हैं, हम पकड़ के रखेंगे ना थोड़ी देर में वो थोरियम में कन्वर्ट हो जाएगा, कभी यूरेनियम में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स रेडियो एक्टिव बिहेवियर। तो इसलिए हम लोग फ्रांजियम अगर हमें ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम लड़ेंगे नहीं कि हमें फ्रांजियम दो, ठीक है, हम बोलेंगे हाँ सीजियम सही है। ओके, क्योंकि हम लोग जनरली जो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं वो ग्रुप 6 तक ही पढ़ते हैं। ओके, बट अगर फ्रांजियम और दोनों लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली कौन सही होगा? ऑब्वियसली कौन सही होगा? Francium. नाउ डिड यू गेट माय पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Ma'am, कोई प्रॉब्लम? हाँ मैम इनर्ट गैसेस में जो है मतलब along with that van der Waal radius one, doesn't the screening effect also works? किसमें मैम तो screening किसमें effect का कोई किसमें effect आता है किसमें मतलब screening और किसमें shielding बेटा? मैम on inert हाँ तो आ gases. तो रहा है, तभी तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है भाई। इसमें भी तो आ रहा है, इसमें भी तो p इलेक्ट्रॉन होंगे इससे पहले, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, सब में ही होंगे, वो तो कॉमन है ना स्क्रीनिंग इफेक्ट। Yes, ma'am. इसके अंदर अरे जब हम इसका लिखोगे फास्फोरस का तो इसका भी तो होगा ना 2 8 5, नंबर ऑफ स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही है ना। जिसको जितना फास्फोरस को स्क्रीनिंग मिल रहा है उतना ही सल्फर को मिल रहा है, उतना ही क्लोरीन को मिल रहा है, उतना ही यहाँ पर अगर आर्गन लिख लेते हो तो उसको भी मिलेगा। तो जो इफेक्ट कॉमन है वो तो हम निग्लेक्ट कर देते हैं ना, जो इफेक्ट डिफरेंस क्रिएट कर रहा था उसको काउंट करते हैं। अब जैसे यहाँ देख लो नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है तो क्या हम उसकी बात कर रहे हैं? वो तो सेम है तो सेम ही है। गेटिंग इट? Yes, Yes, ma'am. Ma'am. यस Ma'am, so ma'am, one more thing, ma'am. So Z effective is, ma'am, the primary category for deciding whether we have, ma'am, whether the radius is small or big. But in some but cases, only when your theory about number of orbits fails. For the same number of orbit on moving left to right, yes, effective nuclear charge is the prominent one. See, there are two determining factors what we did over here. तुमने फॉर्मूले में भी पढ़ा था, there were two determining factors, इसीलिए पहले एटॉमिक रेडियस पढ़ाया था ताकि मैं तुमको यहाँ मैथ जिनको लॉजिकल नहीं समझ में आता उनको मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन करके बता पाऊँ। दो डिटरमाइनिंग फैक्टर थे, yes, ma'am. लेकिन n स्क्वायर आ रहा है। n स्क्वायर मतलब क्या हो गया? मेजर डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन हो गया? नंबर ऑफ ऑर्बिट। Yes, ma'am. That is why number of orbits here, even though z is effective is increasing, see atomic number is increasing, z effective is increasing, but we are talking about number of orbit first, Yes, ma'am. ठीक है। but अगर number of orbit same हो गया, that is in when you are talking about the same period, then who will be the determining factor? An atomic number. Atomic number और effective nuclear charge, Yes, ma'am. ठीक है। अगर वो फेल हो रहा है, मैंने देखो यहाँ कंडीशंस लिखते टाइम भी स्टेप वाइज लिखी थी तुम्हारे लिए कि पहले ये लगानी है, उसी प्रायोरिटी ऑर्डर में ही लिखी है, ठीक है। अगर पहली फेल हो जाती है तो सेकंड लगानी है, ठीक है। अब हम कभी आगे भी पढ़ेंगे जब हमारी सेकंड भी फेल हो जाएगी तो हमें क्या लगानी, तब स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट लगेगी। कैन यू गेट माय पॉइंट? Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू रिवाइज द थिंग्स, ठीक है। इसको दोबारा से रीड करो एंड जस्ट revise it again, and then in the next class we will start with ionization potential. तो मेन काम होता है एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन को समझाने का, उसके बाद में जो भी कुछ होगा वो तुम ऑटोमेटिकली फॉलो कर लोगे, उसमें दिक्कत नहीं आती है। Okay. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, could you please send the notes for that KVPY For the chemistry class which was held on Saturday? Ma'am, that KVPY chemistry class which was held on a Saturday last. I did not happen to save it, but I'll try to put it on the recorded version in a day or two. Okay, thank you, ma'am. Okay, because I From which chapter